Good afternoon, everybody. A warm welcome to all the participants and our esteemed speaker, Advocate Jayaprakash Somani, Supreme Court of India. He is a CEO of our law firm, and he has written a more than 65 plus books on the different legal matters related to civil, criminal, corporate, intellectual property rights, and insolvencies. Today we are here with our corporate jurisprudence series, and the today's topic is contract disputes. We know the company is a association of different team members to work for their growth, and in each step we required a contract, whether it is from the supplier, whether it is from the employee, or where it is with the shareholders. Everywhere we have to make the agreements, but when there is any dispute arises on those agreements, how that has get resolved and how the Supreme Court judgments and the lead cases guides to the lower courts to resolve these disputes. So today we have our esteemed guest. He will talk on the contract disputes. Over to you, sir. Thank you. Thank you, Manoj, for my short introduction. Because we have to give more time to this webinar, this is very exhaustive information which I am sharing today. For better understanding of the audience, I will elaborate this subject into mixed language, Hindi and English also. English more, Hindi little. Because all notes, everything, blog, which was created by me is in English. So translating to each and every word in Hindi is a very tough task, but just connecting few sentences, I will try to make this webinar very friendly and very easy going to the audience. तो दोस्तों, ये जो इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इंडस्ट्री में या बिजनेस में, बड़े बिजनेस जिसको हम कॉर्पोरेट बोलते हैं, एलएलपी है, प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक अंडरटेकिंग है, पीएसयू जिसको हम बोलते हैं, ये सब जो है, ये सब कॉर्पोरेट में आता है. और पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरी है, ये नॉन कॉर्पोरेट फर्म में आता है. सो at national level or at international level, when one corporate firm is doing business with another corporate firm inside the country or outside the country, or any corporate firm is doing the business with any individual. Business means not only taking goods and supply like that, but taking services also comes into business, transactions. And when they are preparing any contract, and when that contract breaks, that time litigation arises. So today's subject, आज का जो हमारा विषय है, ये विषय कॉर्पोरेट लिटिगेशन से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट का है, क्योंकि हमारा कॉर्पोरेट लिटिगेशन सीरीज चल रहा है. तो इसका पहले एपिसोड भी आपको इसमें मिल जाएंगे, ये हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर. जहाँ पे ये मिलेगा आगे यूट्यूब पे वहाँ ही मिलेगा. आप जयप्रकाश सोमानी यूट्यूब चैनल पे जाके टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगा. आज का वेबिनार I will elaborate in 21 points, more than 20 points. बहुत exhaustive और बहुत comprehensive. Not comprehensive, but little bit more than that. I will try to elaborate in this webinar. Contract are the foundation of the modern commerce. ये मेरा पहला पॉइंट है जिसमें हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको. Contracts are the foundation of the modern commerce. Every corporate transaction, whether involving supply of goods हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, कंस्ट्रक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, फ्रेंचाइजिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, जॉइंट वेंचर हो, एम्प्लॉयमेंट हो, टेक्नोलॉजी हो, मर्जर्स एंड एक्विजिशन हो, इज गवर्न बाय कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है. When one party fails to perform in its contractual obligation, dispute arises
और ये जो डिस्प्यूट अराइज होता है, दे आर हेडिंग टू सिविल लिटिगेशन, कमर्शियल सूट्स, आर्बिट्रेशन, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, डैमेजेस क्लेम एंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्शंस। इतने टाइप से लिटिगेशन तैयार होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट कॉन्स्टिट्यूट अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ कमर्शियल लिटिगेशन बिफोर। अभी कहाँ कहाँ आते हैं कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स? बिफोर कमर्शियल कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसकी जो ट्रायल कोर्ट है कॉर्पोरेट्स के, वो ट्रायल कोर्ट है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। कमर्शियल कोर्ट भी इसके ट्रायल कोर्ट है। और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का क्लॉज है कि इफ डिस्प्यूट अराइजेस वी विल अपॉइंट इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर, ऐसा क्लॉज है तो फिर आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके वो सुलझाया जाता है। सो फिर वो आर्बिट्रेट ट्राइब्यूनल के सामने वो केस जाता है। अदरवाइज कमर्शियल कोर्ट में आता है या एनसीएलटी में जाता है। उसके बाद हाई कोर्ट में इसका अपील आता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसका अपील आता है। एनसीएलटी का अपील एनसीएलएटी में जाता है, अपीलेट ट्राइब्यूनल में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आता है। इसकी हायरार्की है। देन सेकंड पॉइंट है गवर्निंग लॉज। इसमें ये पर्टिकुलर जो कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का पार्ट है कॉर्पोरेट्स का, इसमें कौन से लॉ इन्वॉल्व होता है? सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ मेजर एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, प्रिंसिपल लेजिस्लेशन गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। सेक्शन 2H which define contracts. Section 10 said about valid contracts. 11 competency to do the contract, कॉन्ट्रैक्ट करने की पात्रता। 13 कंसेंट, 14 फ्री कंसेंट, 17 फ्रॉड, सेक्शन 18 मिसरिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 23 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लॉफुल कंसिडरेशन, सेक्शन 37 ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, सेक्शन 39 refusal to perform, section 56 frustration, section 73 damages, section 74 liquidated damages, and 75 compensation upon rescission. ये इसके sections important है। Second law which is related to these contract disputes of corporates, Specific Relief Act 1963. This law provides specific performance, injunctions, declaratory relief। इसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं सेक्शन 10 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सेक्शन 11 to 14 एनफोर्सेबिलिटी, सेक्शन 36 to 42 इंजंक्शंस। देन अगला कानून which is related to this is Arbitration and Conciliation Act 1996। इसके ऊपर आपको मेरा अलग वीडियो भी दिखेगा। Arbitration is nothing but it is a private court which is established by both the parties of the contract। इसलिए ये आर्बिट्रेशन दिखते समय ऐसा थोड़ा सा ग्लैमर वर्ड लगता है, भाई आर्बिट्रेशन, आई एम इंटरेस्टिंग इन आर्बिट्रेशन, लेकिन वो लॉ स्टूडेंट को मालूम ही नहीं आर्बिट्रेशन क्या होता है। ऐसा भी होता है। इट इज नथिंग बट अ ट्रायल कोर्ट विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय द प्राइवेट लेवल बाय द बोथ द पार्टीज, ऐसा है। तो उसके ऊपर सेपरेट मेरा वीडियो भी है, मेरे ख्याल से एक वेबिनार भी है पूरे लॉ के ऊपर। अगर नहीं होगा वापस भी कभी लेंगे आगे। आप कमेंट बॉक्स में डालते रहिए आपको कौन से वेबिनार की जरूरत है। जो भी यूट्यूब पे इसको देखेंगे उन्होंने भी इसको कमेंट में डालते रहना। कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 is also one of the important statute under this matter, provides expedite adjudication of commercial disputes।
तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आज के वेबिनार का है वो है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट। कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट कब तैयार होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट अराइजेस व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच्ड, अगर कॉन्ट्रैक्ट का भंग होता है, ऑब्लिगेशन रिमेन अनपरफॉर्म्ड, पेमेंट इज विथहेल्ड, पेमेंट ही दिया नहीं, रोक के रखा है, गुड्स आर डिफेक्टिव, माल खराब हो गया, खराब निकला, सर्विसेज आर डिफिशियंट, डिलीवरी टाइमलाइंस आर वायलेटेड, confidential information is misused, and wrongful termination occurs। ये सब जो है ये इसके कारण कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट में आता है। दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट की जो मैटर्स है ना, ये सुप्रीम कोर्ट में कैसे हैंडल होता है, इसके ऊपर मेरा शॉर्ट वीडियो बनने वाला है आज ही। अगर आप वो वीडियो में रहना चाहते हैं तो ये जो वेबिनार है अभी का, ये वेबिनार छोड़ना नहीं। एंड में हम इसका रिकॉर्डिंग स्टॉप करेंगे, हम एंड नहीं करेंगे मीटिंग, और वो मीटिंग वैसी कैरी आउट रहेगी। और उसमें हम वो शॉर्ट वीडियो जो है 5 से 6 मिनट का, वो हम शूट करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में ये कॉन्ट्रैक्ट के मैटर्स कैसे चलते हैं, विच इज रिलेटेड टू ओनली सुप्रीम कोर्ट। ऐसा है अभी का जो मेरा वेबिनार है, ये एंटायर कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट के ऊपर है, कॉर्पोरेट लिटिगेशन विच इज अराइजेस आउट ऑफ द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसके ऊपर हमारा पूरा प्रोग्राम। फिर ये मैटर आर्बिट्रेशन में जा सकता है, ये मैटर कमर्शियल कोर्ट में जा सकता है, ये मैटर एनसीएलटी में जा सकता है, उसके आगे अपील में हायर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में कौन से प्रिकॉशन लेने पड़ती है, क्या लेनी पड़ती है, लॉयर कैसा चाहिए, किस एंगल से ड्राफ्टिंग करना पड़ता है, किस एंगल, ये शॉर्ट में हम एक 5 से 6 मिनट या 7 मिनट में लेंगे, क्योंकि ये वो दैट इज फॉर जनरल पब्लिक, एक अपीलिंग। तो नो सेपरेट लिंक इज फॉर दैट, इन सेम लिंक यू विल गेट दैट, बट ऑन यूट्यूब इट विल कम डिफरेंटली, डिफरेंट आएगा, ये अलग आएगा, ये अलग आएगा। Then fourth point of today's webinar is we have to complete 20 points, 20 या 21 points है। इतना मैंने बहुत अच्छी तरह से एलोबरेटिव इसका ब्लॉग तैयार कर रखा है। ये ब्लॉग भी पब्लिश होगा आगे चल के हमारे वेबसाइट के ऊपर, इसका भी लिंक आएगा आपको। ऑफिशियल ग्रुप में अगर आप हैं एनपीएनएलसी के, एनपीएनएलसी ऑफिशियल 1, एनपीएनएलसी ऑफिशियल 2, या हमारा लाइफ मेंबर का जो ग्रुप है, लाइफ मेंबर हमारा नानी पालकी वाले का बनना बहुत इजी है, बहुत इजी है, क्योंकि खाली 500 रुपये भरते लाइफ टाइम मेंबर बन जाते हैं आप। उसमें कुछ आपको प्रायोरिटीज मिलते हैं, तो उसमें भी आप अगर है तो आपको ये वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, ये ब्लॉग के भी लिंक मिल जाएंगे। ब्रोकन, फोर्थ पॉइंट, ब्रोकन प्रोमिसेस एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी प्रॉमिस ब्रोकन होता है, विच इज रिलेवेंट सेक्शन ऑफ फॉर दैट सेक्शन 37, पार्टीज मस्ट परफॉर्म प्रोमिसेस। जब कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है और जो कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने प्रॉमिस किया है, दैट प्रॉमिस शुड बी परफॉर्म बाय बोथ द पार्टीज और मेनी पार्टीज। जरूरी नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट 2 पार्टी में हो, कॉन्ट्रैक्ट 2 से ज्यादा पार्टी में भी होता है। इधर से 1, इधर से 4, इधर से 4, इधर से 1, वाइस वर्सा, ऐसा कैसा भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। देन सेक्शन 39, रिफ्यूजल टू परफॉर्म अमाउंट टू ब्रीच। अगर परफॉर्म रिफ्यूज किया जाता है, देन सेक्शन 39 के अनुसार वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का इन्फ्रिंजमेंट होता है। एग्जाम्पल देते हैं कि एग्जाम्पल के साथ कुछ कुछ जगह पे मैंने इसको केस लॉज के साथ भी लिया है, काफी केस लॉज भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और फिर बाद में लिस्ट भी है जिसमें कौन से केस लॉज में कौन सा प्रिंसिपल कवर होता है, कि जो लॉयर के लिए बहुत यूजफुल रहेगा ये चीजें। आगे चल के हम इसी विषय के ऊपर खाली 2021 की जो ये केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट के, उसके ऊपर भी वेबिनार अलग से लेंगे। अब नानी पालकी वाला से जुड़ी रही है दोस्तों, एनरिचमेंट ऑफ नॉलेज एक कंटिन्यूस होता रहेगा, ये याद रखना।
अभी इसका जो एग्जाम्पल है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, वो ये है, अ सॉफ्टवेयर कंपनी एग्रीज टू डेवलप ईआरपी सिस्टम फॉर ₹2 crore. आफ्टर रिसीविंग एडवांस पेमेंट इट अबेंडन द प्रोजेक्ट. एडवांस पेमेंट मिलने के बाद उन्होंने प्रोजेक्ट स्टॉप कर दिया, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट में आ गया. सो क्लाइंट में, अभी क्लाइंट क्या क्या कर सकता है? क्लाइंट में सू फॉर डैमेजेस, तो डैमेजेस के लिए केस फाइल कर सकता है. रिफंड के लिए केस फाइल कर सकता है, रिफंड विथ इंटरेस्ट एंड विथ हैरेसमेंट आल्सो. एंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कर सकता है कि भाई उसने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ही करके देना है. दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. ऐसे तीनों मार्ग से वो कर सकता है, तीनों मार्ग से भी जा सकता है, तीनों में से एक मार्ग से भी जा सकता है. इसी पॉइंट में टाइप्स ऑफ ब्रीच. ए एक्चुअल ब्रीच ऑकर्स आफ्टर ड्यू डेट. ड्यू डेट तक ब्रीच नहीं होता है, ड्यू डेट तक अगर काम नहीं हुआ तो ब्रीच होगा. फॉर एग्जांपल, सप्लायर फेल्स टू डिलीवरी मशीनरी. देन बी एंटीसिपेटरी ब्रीच. सामने वाला ब्रीच कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट का. जैसा एंटीसिपेटरी बिल होता है ना, वैसा एंटीसिपेटरी ब्रीच भी होता है. एंटीसिपेशन, भाई सामने वाला ब्रेक कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, तो भी आप उसका प्रिकॉशन ले सकता है. occurs before due date. It can be a before due date also. Example, vendors inform purchaser beforehand that it will not supply goods. So that time anticipatory breach can be occurred. लीडिंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इसके ऊपर, हॉस्टर वर्सेस डी ला टोर, रिकॉग्नाइज्ड एंटीसिपेटरी ब्रीच प्रिंसिपल. अगर एंटीसिपेटरी ब्रीच प्रिंसिपल समझना है आपको कॉन्ट्रैक्ट का, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, तो आप ये केस लॉज पढ़ना चाहिए. आई एम आगे रिपीटिंग, हॉस्टर वर्सेस डी ला टूर. देन next, fifth point of today's webinar is payment dispute. One of the most common corporate dispute, payment dispute. For example, vendor supplied goods worth ₹5 crore and buyer refuses payment. ये काफी बार होता है, इंटरनेशनल ट्रेड में भी होता है. इंटरनेशनल ट्रेड की वीडियो आपको देखना है तो लेटेस्ट मेरे कुछ वीडियो इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर यूट्यूब पे है, आप देख लीजिए. देन एग्जाम्पल 2, कंसल्टेंसी फर्म कंप्लीट्स प्रोजेक्ट. कंसल्टेंसी फर्म ने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, बट क्लाइंट डिस्प्यूटेड इनवॉइस. क्लाइंट इनवॉइस में डिस्प्यूट कर रहा है, तो ये भी एक पेमेंट का डिस्प्यूट हो गया. व्हाट आर द लीगल रेमेडीज? इसके ऊपर क्या लीगल रेमेडीज है ऐसे जब पेमेंट का डिस्प्यूट होता है तो? देन रिकवरी सूट यू कैन फाइल, कमर्शियल सूट यू कैन फाइल, आर्बिट्रेशन यू कैन फाइल, एंड इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग वेयर एप्लीकेबल. 1 करोड़ के आगे अगर डिफॉल्ट है तो आप इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग भी उसका फाइल कर सकते हैं. बैंक सेक्शन 7 के अनुसार करती है आईबीसी के. और जो सप्लायर या जो रहते क्या बोलते हैं उसको, ओसी, ओसी जो रहते हैं ये सेक्शन 9 के अनुसार करते हैं. और कॉर्पोरेटेड खुद इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है सेक्शन 10 के अनुसार. आईबीसी के ऊपर सेपरेट मेरे वीडियोस है, यू कैन वॉच दैट, और आगे भी आने वाले हैं. इंपॉर्टेंट केसेस, मोबिलॉक्स इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस किरुसा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड. citation 2018 1 SCC 353. Ratio, a genuine pre-existing dispute may prevent insolvency proceedings. अगर प्री डिस्प्यूट अगर है तो इंसॉल्वेंसी नहीं होता है, प्री डिस्प्यूट नहीं है तो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग होता है. ये प्रिंसिपल समझने के लिए ये मोबिलक्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड केस बहुत अच्छा है. मेरे बुक्स में है, काफी केसेस है अलग अलग बुक्स में. मोर देन 65 प्लस बुक्स ऑन सुप्रीम कोर्ट केस लॉज आर देयर. इफ यू गो ऑन Amazon, Flipkart, you can find that, or you can just visit to our website also, you will get the link also. और
under the description of any our video, you will find the links of our books. Then vendor dispute. Vendor dispute commonly involves delayed supplier. वेंडर का डिस्प्यूट कहां से तैयार होता है? उसने सप्लाई को डिले किया, डिफेक्टिव गुड्स, खराब क्वालिटी का माल दिया, प्राइसिंग डिसएग्रीमेंट्स, वारंटी डिस्प्यूट, quality control issues. For example, manufacturer contracts for supply of 10,000 components. Vendor supplies defective material causing production loss. Buyer may claim replacement, damages and consequential losses. नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है आज के वेबिनार का वो है नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं करता है. सेक्शन 39 of Contract Act, failure to perform contractual obligation. Example, construction contractor abandons project midways. Employer may terminate contract, evoke performance guarantee, and recover damages. Leading Supreme Court case, ONGC Limited versus Saw Pipes Limited. Citation 2003-5 SCC 705. Ratio, compensation may be awarded where contractual obligations are breached and losses arise. 8. Inventory delivery disputes. Frequently seen in manufacturing, e-commerce, logistics, and international trade. Inventory delivery dispute. Common issues: delayed delivery, goods supplied after agreed date, partial delivery, only part quantity delivered, wrong delivery, non-conforming goods supplied, damaged goods, inventory arrives damages. Example, retail chain orders seasonal product for Diwali and supplier deliver after festival season. दिवाली के बाद सप्लाई किया, क्या फायदा उसका? लॉसेस अराइज, बायर में क्लेम डैमेजेस. अगर ऐसा होता है तो फिर बायर डैमेजेस क्लेम कर सकता है. 9th पॉइंट है हमारा वेबिनार का आज का, वो है मिस्ड डेडलाइंस एंड डिले क्लेम. कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट आ सकते हैं कॉर्पोरेट्स में, ये सब हम बहुत एलोबरेटली डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों. ये सब एक जगह पे ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है. लॉ पढ़ते समय सबसे आसान जाता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमको बहुत एग्जाम्पल के साथ सिखाया जाता है. मैंने तो लॉ पढ़ाई शुरू की थी 1986 में, 86, 87, 88, 86 या 87, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, आई थिंक 86. और 89 में मेरा सनद हो गया था, 1989 में. अभी तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो सेम ही है, बहुत इजी जाता है समझने के लिए, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉर्पोरेट फील्ड. अगर कॉर्पोरेट प्रैक्टिस कोई करना चाहता है तो याद रखना, कॉर्पोरेट फील्ड में आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. हर एक चीज का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है. एम्प्लॉय को रखने के समय भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है. एम्प्लॉय के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ब्रीच होता है तो भी वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही कहलाता है. तो कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ इन सिविल practice as per concern and corporate law as per concern. So missed deadline and delay claims. Time may be essential condition or non-essential condition. टाइम essential condition भी हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट की, नॉन essential condition भी है. जनरली पेरिशेबल गुड्स है, अर्जेंट डिलीवरी गुड्स है, स्पेसिफाइड डेटेड गुड्स है, उसको टाइम ये essential condition है. रेस्ट ऑफ थिंग के लिए नॉन एसेंशियल कंडीशन हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आईटी कंपनी एग्रीज टू कंप्लीट सॉफ्टवेयर बिफोर आईपीओ लॉन्च, प्रोजेक्ट डिलेड बाय 8 months, क्लाइंट सफर सब्सटेंशियल लॉसेस. इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, व्हेन टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिले में जस्टिफाई टर्मिनेशन. लीडिंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इसके ऊपर,
हिंद कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, साइटेशन है 1979 टू SCC 70। इसका प्रिंसिपल है, रेशो है, टाइम इज नॉट ऑटोमेटिकली इसेंस ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्ट, इंटेंट ऑफ पार्टीज गवर्न्स इट। वेरी गुड केस लॉ। 10 नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स, जिसको हम NDA बोलते हैं, NDAs, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। कभी कभी हम कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं डिस्क्लोजर, स्पेसिफिकली लॉयर को जब हम हमको कॉर्पोरेट से केसेस आते हैं, स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट में। जस्ट होल्ड फॉर 1 मिनट। सुप्रीम कोर्ट में जब हमको कॉर्पोरेट से केसेस आता है तो उसमें कुछ कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी रहती है, तो फिर वो क्या करते हैं, हमसे NDA साइन कर लेते हैं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। अगर वो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करने के बाद भी अगर वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमारे ऑफिस से लीक होती है और उसके कॉम्पिटिटर को मिलती है, सो दे कैन क्लेम डैमेजेस अगेंस्ट दैट फ्रॉम अस, ऐसा कर सकते हैं। इसलिए यह है कि ये खाली लॉयर के साथ ही होता है, ऐसा नहीं। वो कॉर्पोरेट जहां जहां उनको लगता है कि NDA साइन करवाना चाहिए क्योंकि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वहां पे वो कर सकता है। तो इसलिए ये एक अलग इशू है कॉन्ट्रेक्चुअल डिसएग्रीमेंट का। NDA प्रोटेक्ट, NDA प्रोटेक्ट्स, NDA वो NDA नहीं है, NDA गठबंधन वगैरह वो NDA नहीं, ये क्या है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। NDA प्रोटेक्ट ट्रेड सीक्रेट्स, कंज्यूमर डाटा, प्राइसिंग मॉडल्स, सोर्स कोड्स एंड बिजनेस स्ट्रेटेजीज। रिलेवेंट लॉज, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, ट्रेड सीक्रेट प्रिंसिपल। हमारे कॉपीराइट एक्ट के ऊपर, पेटेंट एक्ट के ऊपर बहुत अच्छे वेबिनार होके गए हैं, आप जरूर देखना, इसको आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा उसका। एग्जाम्पल, एम्प्लॉय शेयर्स कॉन्फिडेंशियल कस्टमर डेटाबेस विथ कॉम्पिटिटर। एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉय ने अगर शेयर किया कॉन्फिडेंशियल कस्टमर डेटाबेस विथ कॉम्पिटिटर, देन कंपनी में सीक इंजंक्शन, डैमेजेस, क्रिमिनल एक्शन वेयर एप्लीकेबल, ऐसा होता है। इंपॉर्टेंट रिलीफ, टेम्पररी इंजेक्शन टू रिस्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर। 11 termination of dispute, a major source of commercial litigation. Termination of dispute types: lawful termination, contract permits termination, and wrongful termination, termination contrary to the agreement. Example, franchisee agreement allowed 90 days notice, franchisor terminate immediately, franchisee may claim damages. Relevant sections, section 39, refusal to perform, and specific relief act provides remedies. इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक केस लॉ है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस अमृतसर गैस सर्विस, साइटेशन 1991 1 SCC 533। इसका रेशो है, प्रिंसिपल है, रॉन्गफुल टर्मिनेशन में अट्रैक्ट डैमेजेस बट नॉट ऑलवेज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। 12 नॉन कॉम्पेट clauses. Relevant provisions, section 27 of Indian Contract Act. Agreement is restrained to trade any generally wide. Generally wide. Example, employee leaves company, employer prevent employees from working anywhere in India for 5 years. Generally unenforceable. Employee leaves company, employer prevent employees from working anywhere in India for 5 years. Generally, this type of matter is not enforceable, unenforceable है। हाँ, लेकिन लिमिट है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल तक का लिमिट है, तो डेट इज enforceable। इसलिए कोई भी लिमिट अगर डालना है आपके एम्प्लॉय के ऊपर, भाई आप एक हमारा कंपनी छोड़ने के बाद या हमारा लॉ फर्म छोड़ने के बाद आप सिमिलर टाइप की प्रैक्टिस
परमानेंट नहीं कर सकते हैं तो ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन स्पेसिफिक पीरियड डालते हैं, कूलिंग पीरियड 6 महीने का, 1 साल का, तो फिर दैट विल बी एनफोर्सेबल, दैट विल इज वैलिड। दैट इज द नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है, क्योंकि आर्टिकल 19 ने फ्रीडम दिया है बिजनेस प्रोफेशन करने का हर आदमी को। तो यू कैनॉट स्नैच दैट फ्रीडम परमानेंटली फ्रॉम एनीबडी। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवा सकता आपसे कि भाई आपको मैं एजुकेशन के लिए इतना दे रहा हूँ पैसा, आपने एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद हमारी कंपनी ज्वाइन करना है इतने साल के लिए परमानेंटली या मोर देन 10 years वगैरह, ऐसा है तो दैट इज नॉट एनफोर्सेबल, दैट इज नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज वाइड फ्रॉम अब इनिशियो, इसे बोल सकता है इसको। रिसेप्शन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट में भी वैलिड है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो मैंने अभी अभी बताया ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट इज वैलिड। लीडिंग सुप्रीम कोर्ट केस है इसके ऊपर, निरंजन शंकर गोदीकारी वर्सेस सेंचुरी स्पाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, citation AIR 1967 SC 1098, ratio restrictions operative during employment may be enforceable. 13, liquidated damages clauses, section 74 is very important for that. Predetermined compensation, example, contract state that rupees 50 lakh payable for delayed delivery, ऐसा अगर है तो चलेगा। कोर्ट एग्जामाइन रीजनेबलनेस एंड एक्चुअल लॉस, अनरीजनेबल भी अमाउंट नहीं चाहिए, रीजनेबलनेस एंड एक्चुअल लॉस कोर्ट देखेगा और वो हिसाब से कोर्ट एडजुडिकेट करेगा मैटर को। लीडिंग केस कैलाश नाथ एसोसिएट्स वर्सेस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, citation 2015 4 SCC 136, ratio damages cannot be awarded mechanically without legal basis। इसलिए दोस्तों कॉन्टैक्ट करते समय इस ढंग से कॉन्टैक्ट कीजिए, विच शुड बी अ रीजनेबल, रिस्ट्रिक्शन शुड बी रीजनेबल, कॉम्पेंसेशन शुड बी रीजनेबल, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो भी लॉस होगा उसका डबल कॉम्पेंसेशन क्लेम करेंगे, इट इज अलाउड। लेकिन 10 times ऑफ द लॉस इट इज अनरीजनेबल। तो जब अनरीजनेबल चीजें होती है ना तभी डिस्प्यूट तैयार होता है, डिस्प्यूट तैयार होता है तो कॉन्ट्रैक्ट फिर कोर्ट में जाता है। लीडिंग सुप्रीम कोर्ट केस है इसके ऊपर, नहीं हाँ एक मिनट, ऊपर का 14 पॉइंट 14 पॉइंट मैं एक्सप्लेन करता हूं, देन आई विल गिव द लीडिंग केस ऑफ दैट। फोर्स मेजर एंड फ्रस्ट्रेशन, फोर्स मेजर एंड फ्रस्ट्रेशन, सेक्शन 56, कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, एग्जाम्पल वॉर, कभी कभी ऐसे होते हैं ना विच इज बियॉन्ड कंट्रोल, बिकॉज कंट्रोल, ऐसा ऐसा कोई आ गया जैसा पेंडेमिक आया था कोविड का, वॉर, पेंडेमिक, गवर्नमेंट प्रोहिबिशंस, नेचुरल डिजास्टर, तो ऐसे हालात में जो रहता है इसमें कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाता है कभी कभी परफॉर्म करने के लिए। तो इसके लिए एक लीडिंग केस है एनर्जी वॉच डॉग वर्सेस सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, citation 2017-14 SCC 80, ratio commercial hardship alone is not frustration। Then 15, specific performance, specific relief act, court may compel performance, example, share purchase agreement involving strategic acquisition, damages may be inadequate, court may order performance। 16, arbitration in corporate contract disputes, most corporate agreement contains arbitration clause, arbitration clause डालना ही चाहिए, ये अच्छा रहता है क्योंकि arbitration एक साल के अंदर खत्म हो जाता है। कमर्शियल कोर्ट में जाते हैं, कमर्शियल कोर्ट भी अभी काफी फास्ट हो गया है लेकिन तो भी डिले है, ये छोटे छोटे आए डालते रहते हैं, वो आए को रिस्पांस नहीं मिलता है, फिर उसको अपील हाई कोर्ट में होता है, वो हाई कोर्ट के अपील के अंदर सुप्रीम कोर्ट के तक आता है, नीचे केस कमर्शियल कोर्ट में वो स्टे हो जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट से क्लियर होने के बाद फिर वो आए, खाली आए क्लियर होता है, फिर वो केस चलता है।
ये आय डालने की जो प्रोविजन है, इसके कारण इतने डिले होते हैं केसेस है। हम सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के लिए अच्छी बात है वो, बिकॉज ऐसे छोटे छोटे आय के ऊपर भी केसेस हमारे पास आते रहते हैं। बट फॉर द सोसाइटी एट लार्ज इट इज नॉट गुड। तारीख पे तारीख अननेसेसरी डिले होते हैं लिटिगेशन, इसके लिए इसके ऊपर थोड़े से बंधन चाहिए चाहिए, ऐसा है। तो वो एक अलग इशू है, अलग इशू के ऊपर कभी हम डिबेट खड़ा करेंगे, ऑल इंडिया लेवल डिबेट खड़ा करेंगे, उसके ऊपर हम इसके ऊपर जरूर आप सबके ओपिनियन भी लेंगे कि हम इसको क्या क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। हमको डिबेट खाली डिले हो रहा है, ये हो रहा है, कोर्ट पेंडिंग केसेस पड़े हैं, ये है वो है, आई डोंट वांट टू रेज दैट क्वेश्चंस, दैट क्वेश्चंस नो एवरीबडी, एवरीबडी नोज इट। जजेस को मालूम है, सबको मालूम है डिले हो रहा है। वी वांट टू स्टार्ट द डिबेट फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑन दैट, उसका सॉल्यूशन निकालना है। जो पेंडिंग केसेस है वो सॉल्व करने के सॉल्यूशन निकालना है। क्यों एक शिफ्ट में कोर्ट चले? व्हाई कोर्ट शुड नॉट रन इन टू शिफ्ट्स? इंडस्ट्री में जब सप्लाई ज्यादा हो जाता है, सप्लाई डिमांड ज्यादा हो जाता है, तो सप्लाई करने के लिए इंडस्ट्री आदमी क्या करता है? वो इंडस्ट्री का आदमी क्या करता है? वो शिफ्ट बढ़ा देता है। पहले 8 घंटे का शिफ्ट है और एक 8 घंटे का कर दें, फिर वो भी सप्लाई कम होने लगता है, डिमांड ज्यादा ही है, तो तीसरी शिफ्ट स्टार्ट करेगा। तीसरी शिफ्ट स्टार्ट करने के बाद भी अगर होता है तो फिर वो दूसरा यूनिट स्टार्ट करता है। Why government is not taking such type of initiative? Why such type of huge holidays are there? ऐसे कुछ रेमेडीज है दोस्तों, 100%। Why advocates are allowed to argue and so on? 1 घंटा 2 घंटा क्यों आर्ग्यू करने के लिए चांस देना है? इसके कारण भी डिले होते हैं मैटर। बट अनलेस एंड अनटिल एडवोकेट एक्ट गेट इट अमेंडेड, एडवोकेट एक्ट में अमेंडमेंट नहीं होता है उसका, तब तक वो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं आएगा। ये सब एक दूसरे से निगड़ित शब्द है, और हमारा नानी पालके वाला नेशनल लॉ क्लब उसके लिए ही है। ये तो एक मार्ग है हमारा टू एक्सप्लेन द लॉज, एक्सप्लेन द डिफरेंट सब्जेक्ट रिलेटेड टू लॉ। इसको हम बोल सकते हैं कि लीगल अवेयरनेस क्रिएट करना ऑल इंडिया लेवल के लिए, ये हमारा काम है ही है। लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन देके, गवर्नमेंट अगर नहीं मानता है तो देन फाइलिंग द पीआईएल इज आल्सो द पार्ट ऑफ द नेशनल नानी पालकीवाला नेशनल लॉ। इसलिए जुड़ जाइए दोस्तों नानी पालकीवाला नेशनल लॉ को, आपके आने दीजिए प्रॉब्लम क्या है। हम दिल्ली में बैठे हुए हैं ये सब करने के लिए, और हम आहिस्ता आहिस्ता कर भी रहे हैं ये सब चीजों। ये छुट्टियां कैंसिल होनी चाहिए, सब छुट्टियां। क्या करते हैं महात्मा गांधी की जयंती के दिन? आप लोग बताओ मुझे, 15 अगस्त के दिन क्या करता है? हाँ, 26 जनवरी के दिन क्या करता है? सब छुट्टियां कैंसिल होनी चाहिए। हाँ, कंटिन्यू सैटरडे संडे ऑफ दे दो चलो, लेकिन 5 दिन कंटिन्यू आपने 9 घंटा काम करना चाहिए, ऐसा लॉ बनना चाहिए। 9 आवर्स, तो वीकली कवर हो गया आपका, तो एक दिन छुट्टी ज्यादा मिल गया आपको, सैटरडे संडे। बीच में कोई और नहीं, दिवाली है, ईद है, हो जिसका ईद है उस दिन छुट्टी लेना है, जिसका दिवाली है उसको छुट्टी लेगा। और 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन झंडा वंदन ये वो सब ऑर्गेनाइजेशन में कंपलसरी चाहिए। काम भी ज्यादा करो, काम भी करो, झंडा वंदन भी करो। झंडा वंदन करेंगे, छुट्टी मारेंगे, ड्राई डे रहता है कि पहले दिन ही दारू का स्टॉक करके रखेंगे। कब 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 हमारा इफिशियंसी सुधरेगा दोस्तों? खाली गवर्नमेंट नहीं कर सकता है इसको, हमको भी करना है, हमको आगे आना है इस सब चीजों के लिए। इफिशियंसी डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। हम व्यक्तिगत लेवल पे हम कभी छुट्टी नहीं लेते हैं। मैं कभी नहीं लेता छुट्टी। क्यों नहीं छुट्टी लेता? क्योंकि मैं काम ही नहीं करता। आप बोलेंगे फिर काम नहीं करते तो अभी तो काम कर रहे हैं। काम नहीं करता इसका मतलब यह है कि मैं लॉ में एंजॉयमेंट करता, मुझे लॉ एंजॉयमेंट का पार्ट है। मुझे वेबिनार देना, मुझे कोर्ट के सामने आर्ग्यू करना, कोर्ट के केसेस हमारे जूनियर से तैयार करके लेना, उसके डिफेक्ट्स देखना, उसको उसको सॉल्व करना, रिसर्च डेवलपमेंट करना, पब्लिक को गाइड करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई फील वेरी हैप्पी इन दैट। इसलिए मुझे कभी लगता नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। संडे को भी करता हूँ, कभी भी करता हूँ, कभी भी मीटिंग लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। हाँ, खाली नवरात्रि के जो 7 8 दिन रहते हैं जिसमें मैं मौन रखता हूँ,
उस समय मेरा अपने आप ही छुट्टी हो जाता है, क्योंकि माउंट रहता है, इंटरनेट बंद रहता है, सब बंद रहता है। कोई एक ग्रंथ लेके मैं हिमालय में जाके बैठता हूँ और वो उसको पढ़ता हूँ। बस उतने 7-8 दिन जो मिलते हैं मुझे, बस उतने ही मिलता है। अदरवाइज आई एम नॉट टेकिंग अ सिंगल हॉलीडे एज अ हॉलीडे। हाँ, हम घूमने के लिए जाते हैं, मियाँ बीबी जाते हैं, विदेश घूमते हैं, देश भर में घूमते हैं, ट्रिप निकलते हैं, लेकिन हियरिंग भी करते हैं। ट्रिप करते करते हियरिंग भी करते हैं, ऑनलाइन भी हियरिंग करते हैं। ये प्रोविजन हुआ है, अभी अच्छा हुआ है, हाइब्रिड का सिस्टम है, लेकिन हम दुर्लक्ष्य नहीं करते हैं, बिकॉज वी आर इन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। हम अंतिम कोर्ट में हैं। हम थोड़ा दुर्लक्ष्य करेंगे ना तो क्लाइंट का नुकसान होता है। इसके आगे कोई कोर्ट नहीं है। वी डोंट हैव राइट टू प्ले विद द फ्यूचर ऑफ द क्लाइंट। हमारे लिए 1000 में का एक केस रहता है उसका, लेकिन उसके लिए उसका लाइफ का सवाल रहता है। वी डोंट हैव टू नेग्लेक्ट हिज केस। दोस्तों, इफिशियंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इफिशियंसी अगर प्रॉपर है तो आपको एज मायने नहीं रखता है। एज कितना हो गया, इट मेक्स नो डिफरेंस। इसलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट में 96 का रिकॉर्ड है। 96 एज तक लोगों ने प्रैक्टिस की हुई है। दोस्तों, हम अगर इफिशियंट बनेंगे तो हमारे आजू बाजू के लोग इफिशियंट बनेंगे, तो राष्ट्र इफिशियंट बनेगा। बस इतना ही मुझे बोलना है। और इसके लिए जो जो करना है, पीआईएल डालना है, पहले गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन देना है, गवर्नमेंट नहीं मानती है तो पीआईएल डालना है, कोर्ट से आदेश दिलवाना है, एक अलग मोमेंटम करना है। कभी कभी कोर्ट भी नहीं सुनती है, गवर्नमेंट भी नहीं सुनता है, फिर क्या करे? ये आंदोलन करो, आंदोलन खड़ा करो, सिग्नेचर का आंदोलन खड़ा करो, दो, अपने आप दबाव आएगा। इसलिए नानी पालिका वाला नेशनल लॉ क्लब के लाइफ मेंबर बढ़ा रहे हैं हम। लाइफ मेंबर बढ़ो, लाइफ मेंबर बढ़ो, और फिर देखो कैसे मुख्य प्रवाह में आता है। चलो, लास्ट 2-3 पॉइंट रहे। आर्बिट्रेशन इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट। आर्बिट्रेशन इन कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट, ये हमारा 16वां पॉइंट है। मोस्ट कॉर्पोरेट एग्रीमेंट कंटेन्स आर्बिट्रेशन क्लॉज। एडवांटेज, कॉन्फिडेंशियलिटी, स्पीड, टेक्निकल एक्सपर्टाइज, इंटरनेशनल एनफोर्सेबिलिटी। लीडिंग सुप्रीम कोर्ट केस, विद्या ड्रोलिया वर्सेस दुर्गा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। साइटेशन 2021 to SAC 1. Ratio, strong judicial policy favoring arbitration. जनरली हमारे देश में आर्बिट्रेशन को चैलेंज नहीं होता है, आर्बिट्रेटर अवार्ड फाइनल होता है। लेकिन सेक्शन 434 जो है, उसमें अगर वो बैठेगा तो फिर उसको चैलेंज हाई कोर्ट में कर सकते हैं, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। या आर्बिट्रेट अपॉइंट करने के इसमें सेक्शन 11 में अगर वो केस बैठता है, आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए ही डिस्प्यूट हुआ है, तो वो डिस्प्यूट कैन बी सॉल्व बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अंडर सेक्शन 11 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट। अदरवाइज आर्बिट्रेटर अवार्ड जो है वो फाइनली माना जाता है, इसलिए कोर्ट भी सपोर्ट करती है उसको। 17, कॉमन रिलीफ अवेलेबल। अभी कौन से रिलीफ है और उसका पर्पस क्या है? जैसे डैमेजेस है, इसका पर्पस कॉम्पेंसेशन है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एनफोर्समेंट है। परमानेंट इंजेक्शन प्रिवेंट एक्शंस है। टेम्पररी इंजेक्शन इमीडिएट प्रोटेक्शन है। रिकवरी ऑफ मनी पेमेंट क्लेम्स। रिसिशन कैंसिलेशन। डिक्लेरेशन क्लासिफिकेशन क्लैरिफिकेशन ऑफ राइट्स। आर्बिट्रेशन अवार्ड कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट। 18, टॉप सुप्रीम कोर्ट केसेस ऑन कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स। टॉप के कुछ केसेस का लिस्ट मैंने यहां पे दिया है, वो बताता हूं आपको। केसेस, साइटेशन एंड प्रिंसिपल्स। ओएनजीसी वर्सेस सॉ पाइप्स 2003 5 SCC 705 damages. Mobilox versus Kirusa 2018 1 SCC 353 payment dispute. Energy Watchdog 2017 14 SCC 80 force measure. Indian Oil versus Amritsar Gas 1991 1 SCC 533 termination. Niranjan Golikare
AIR 1967 SC 1098 non-complete. Kailas Nath Associates 2015 for SCC 136 liquidated damages. Vidya Dolila 2021 to SCC 1 arbitration. Hind Construction 1979 to SCC 70 time as SS. Nabha Power Limited versus Punjab State Power Corporation Limited 2018 11 SCC 508 contract interpretation. General Assurance Society Limited versus Chandmul Jain AIR 1966 SC 1644 interpretation of contracts. 19 रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज फॉर कॉर्पोरेट्स. ये कॉर्पोरेट के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए जिससे कॉर्पोरेट का कॉन्ट्रैक्ट का रिस्क कम हो जाता है. बिफोर साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या ख्याल रखना चाहिए, ये पॉइंट है. क्लैरिटी डिफाइन ऑब्लिगेशंस, इंक्लूड माइलस्टोन बेस्ड पेमेंट्स, include dispute resolution clauses, draft stock NDA provisions, define force major events, specify termination rights, include limitation of liability clauses, include indemnity provisions, establish performance standards, and maintain documentary evidence. And last, हमारा 20 पॉइंट है कंक्लूजन. आज के प्रोग्राम का कंक्लूजन है. कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट आर एट द हार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट लिटिगेशन एंड फ्रीक्वेंटली अराइजेस फ्रॉम ब्रोकन प्रोमिसेस, पेमेंट डिफॉल्ट्स, वेंडर डिसएग्रीमेंट्स, delayed deliveries, non-performance, confidentiality breaches, wrongful termination, and restrictive conventions. Indian contracts, particularly the Supreme Court of India, have developed a sophisticated body of jurisprudence balancing freedom of contract, commercial clarity, certainty and clarity, business efficiency, fairness, and public policy. For modern corporations, proactive contract drafting, compliance monitoring, dispute avoidance mechanism, and carefully structured arbitration clauses are often the most effective tool to prevent costly and time-consuming litigation. ये आज का हमारा वेबिनार है दोस्तों. अभी let me unmute Manoj so he can conclude this session. Manoj, you can conclude this session. Manoj, unmute yourself. Yes. Thank you very much, sir. The webinar were very elaborative, and we have all the 21 different sections we have covered and we have compiled in one webinar. Thank you very much, sir. Thank you. And for audience, Manoj Kumar Chaudhary is my associate in Supreme Court. He is a convener of Nani Palkiola National Law Club. आपको कभी किसी को सुप्रीम कोर्ट के मैटर के लिए मेरे से कांटेक्ट करना है या गाइडेंस के लिए करना है या किसी चीज़ के लिए विच इज़ रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट, तो यू कैन कनेक्ट थ्रू मनोज टू मी आल्सो. ऐसा कोई है, मनोज को कांटेक्ट करेंगे तो मनोज भी मेरा आपको कांटेक्ट एस्टेब्लिश करके दे देगा, मीटिंग अरेंज करके दे देगा. तो आज के लिए इतना काफ़ी है. अभी मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ इसको.